पूरा ही किया था। पता नहीं, मैंने तो अपना खुद नहीं किया। मतलब तैयारी अच्छा चल रही है तेरी भाई? मैं तो घर पे ही हूँ, मैं कहाँ कहीं गया आया हूँ। हाँ, तैयारी करोगे ही तू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। सर कल वाली क्लास की हेलो हाँ बेटा बताइए। सर कल वाली क्लास की वीडियो डाल दीजिएगा। बेटे कल वाली क्लास की वीडियो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर है, ठीक है। और दूसरा अगर ओके सर, थैंक यू। मैं लिंक को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक। यस सर। ओके सर। गूगल क्लासरूम पर है, और आप चाहेंगे तो मैं अभी आज क्लास के बाद आपकी उसमें सेट कर दूंगा, ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। यस सर। ओके। बेटा स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। ओके। श्वेता मौर्य, हेलो। Yes, yes, sir. बेटा पढ़ाई ठीक हो रही है? Yes, sir. गुड। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, यस सर। यस सर। पढ़ाई ठीक हो रही है बच्चे? यस सर। गुड। ये रिया गुप्ता भी आ गई। हेलो रिया गुप्ता। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून या गुड नून या गुड मॉर्निंग? कुछ भी बोल। Good afternoon. चलिए ठीक है, ठीक है, गुड। तो शुरू करें? Yes, sir. अभी अभी Yes, बच्चे ही sir. नहीं आए। अभी तो बेटा 18 स्टूडेंट्स ही आ पाए हैं, तो अभी 30 हाँ हुआ जी। है, अब तो आएंगे। तो अब वेट करते हैं थोड़ा 2-3 मिनट और, उसके बाद शुरू करते हैं ना। यस Yes, सर। sir. इसकी तो शेयर हो रही है ना? यस Yes, सर। sir. ओके। वॉइस क्लियर है? यस Yes, यस sir. सर।
Okay, good. बेटा ये 1 KCl कौन है भाई ये 1 KCl SPL क्या है भाई ये कौन हो ये 1 KIC SPP LI के क्या है व्हाट इज दिस हु इज दैट बेटा अटेंडेंस आपके नाम से मिलेगी वीरेश वीरेश ये नारका दे गाइस yes students going to start and please have a copy and pen also if possible if you are Vivekanand I think no need to pen and pencil so I think now no one is the Vivekanand so please have a copy and pen so let us start electrochemistry so electrochemistry we are going to discuss first of all some important terms and galvanic cell electrode potential relation of EMF with the thermodynamic functions EMF means E cell of the E cell or electrode potential of the cell the relation of this EMF with the thermodynamic functions means entropy Gibbs energy now electrochemical series and their numericals electrochemical series is a very important series with the help of this series we know the which metal act as a anode which metal act as a cathode so let us discuss in later the electrochemistry based on the next equation तो इसको भी हमें बताना है और फिर आपकी यह है लेड स्टोरेज बैटरी यानी कि बैटरी में जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये वही बैटरी जो इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है और बसेस में ट्रक्स में दिस इज द लेड स्टोरेज बैटरी सो first of all we discuss the electrochemistry definition so we can say it is the branch of chemistry that deals the relation between the electrical and chemical phenomena and law of their interactions law of interaction में छोड़ दीजिए it is a branch of chemistry that deals with the relation between the electrical and chemical phenomena or we can say it is the interaction of
chemical energy and the electrical energy. Chemical energy convert into the electrical energy from the electrochemical cell, and electrical energy convert used in the electrolysis. This is the use of electrical energy. So the production of electrical energy and consumption of electrical energy is the branch of electrochemistry. Such interactions are observed at the boundaries between the electrolyte solution and the electrodes dipping in them. देखिए बेटा, ये आपका एक दो half, it is a one half cell, it is a second half cell, और एक इलेक्ट्रोड आपका ये है और एक इलेक्ट्रोड आपका ये है. एक one thing keep it in mind, the solution of this one is the, जिसका मेटल है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है. ऐसे यहाँ पर जो मेटल है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा. और इट इज अ इन्वर्टेड ट्यूब, इट इज अ इन्वर्टेड ट्यूब, इट इज नॉन एज सॉल्ट वेज. इसके आगे बताएंगे क्या है. और ये सर्किट कंप्लीट होगा बाय वोल्ट मीटर, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो in other words, it is the branch of chemistry which deals with the study of production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reaction. ये मैं पहले बता चुका हूँ. It is the production of an electrical energy with the help of spontaneous chemical reactions. It is important word, spontaneous chemical reactions. इसे अभी एक्सप्लेन करते हैं. And the use of electrical energy to bring about the non-spontaneous reaction. नंबर एक, ध्यान से समझना, अगर प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन आपकी होगी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस, तो इट मींस इट इज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएंगे तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा. इसका मतलब आप उसको फोर्सली करा रहे हैं. इट मींस जब भी कोई फोर्सली रिएक्शन कराई जाती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि अननेचुरल या मैन मेड. और जब भी कोई रिएक्शन केमिकली या कोई नेचुरल तरीके से होती है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको दो केमिकल लेने हैं, उसमें इलेक्ट्रोड डिप करना है और सर्किट कंप्लीट कर देना है. इसमें इसके अलावा और कुछ, इसका नेचुरली रिएक्शन होगी तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो वन थिंग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर द नेचुरल रिएक्शंस carried out itself, but non spontaneous reaction carried out with the help of any applying the force, यानी applying the electricity. यहाँ पर फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, कुछ बच्चे इटसेल्फ पढ़ते रहते हैं तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियसली पढ़ रहे हैं. कुछ बच्चे मेरे फोर्स देने से या पेरेंट्स के फोर्स देने से पढ़ते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है. सो प्लीज, दिस इज द डेफिनेशन. आई थिंक ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपकी क्लियर हो गए होंगे. आगे चलते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स which are used in the electrochemistry in upcoming topics. First of all, electrodes. These are also known as conductors. कंडक्टर में पहले लास्ट लेक्चर में कंडक्टर आपसे काफी बता चुके हैं. दे आर द मेटेलिक एंड सेमी कंडक्टर भी कंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर यहाँ यूज नहीं करेंगे. मेटेलिक है और कार्बन है. कार्बन इज ए इनर्ट कंडक्टर बट इट इज यूज एज अ कंडक्टर. कार्बन की स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन में कंडक्टिंग जो नेचर आती है वो उसमें इन्वॉल्व फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, जिसकी वजह से ये आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. इसका मतलब जितने भी मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड्स. जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज मेटेलिक कंडक्टर्स, मींस मेटल के कंडक्टर. दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आल्सो. एंड एग्जांपल आपके हैं मेटल्स एंड कार्बन. सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. इट आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. तो सब्सटेंस व्हिच अलाउ द passes द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इट मींस दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट.
यानी वो आपकी कंडक्शन का मीडियम है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मीडियम है, तो इट इज द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि अगर वो सॉलिड है तो उनको आप सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूशन में बना लीजिए, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो करते हैं एक्वस यानी वाटर। सॉल्यूशन ऑफ एसिड भी हो सकता है, बेसिस भी हो सकते हैं, और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट हैं एसिड्स भी होंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी एक इलेक्ट्रोलाइट का वर्क कर सकता है, बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस का काम कर सकता है, और उनके सॉल्ट्स मींस जैसे आपका NaCl है, KCl है, KNO3 है, AgNO3 है, जितने भी आपके सॉल्ट हैं इनको भी हम अगर एक्वस सॉल्यूशन इनका यूज कर सकते हैं। Electrolytes are of two types: strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes, they are completely dissociated, or we can say completely ionized, known as strong electrolyte, like HCl. यानी जितने भी strong acid हैं they are, या strong base हैं, they are, why they called strong? Because they are dissociate almost 99.99%, बट 100% भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इसलिए वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन है हाइड्रोजन आयन और Cl आयन का, ये बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। NaOH ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दे आर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। तो ये जैसे पोटेशियम सल्फेट है, इसका KCl भी यूज कर सकते हैं, KNO3 भी यूज कर सकते हैं, NaNO3 भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो जितने भी सॉल्ट्स बन सकते हैं, नाइट्रेट या सल्फेट्स, आपका क्लोराइड्स जो भी हैं, वो दे आर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड मींस व्हाई दे कॉल्ड वीक एसिड? बिकॉज दे डिसोसिएट माइन्यूटली। इनकी जो डिसोसिएशन है, जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन 1 होता है, तो दे आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक आपका बेस है, और H2S ये आपका वीक एसिड है, दे आर एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज नहीं करते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बेटा 2 नंबर में ये पूछा जाता है, व्हाट इज साल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज। सो मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, नंबर 1 जो अभी पिक्चर में फिगर दिखाया था मैंने आपको। You can say it is an inverted glass tube which is filled with the saturated solution of electrolyte. और इलेक्ट्रोलाइट यूज करो, that is we can say strong electrolyte. So, पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व करें, और जितना वो रूम टेम्परेचर जितना वो डिसॉल्व हो जाए, और जब और डिसॉल्व करें, इसमें और अमाउंट बढ़ाएं, फिर डिसॉल्व करें, और लास्ट में आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो दिस इज नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको याद है मैंने फेज रूल में एक एग्जांपल बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या था? सैचुरेटेड मींस इसमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ज्यादा है। अगर यहाँ फेज की बात करूं तो एक तो सॉल्यूशन फेज होगी और एक फेज होगी सॉलिड ऑफ NaCl। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आपकी 2 फेज यहाँ वर्क करेंगी। अगर मैं सीधा बोलूं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, डाइल्यूट का मतलब है वहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, NaCl की कम होगी, यानी वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, तो वहां पर फेज 1 होगी। यानी सैचुरेटेड केस में फेज 2 बनती है, चाहे कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए आप, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन आप ले रहे हैं तो फेज 1 होती है। ये थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ फेज रूल के लिए। सो salt bridge generally contains solution of strong electrolyte, यानी saturated solution, जैसे KNO3 है, KCl है, बट हम जो प्रीफर्ड करते हैं वो करते हैं KCl। रीजन इसका ये है बिकॉज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर को मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। ट्रांसपोर्ट नंबर का नाम है द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयंस, और ट्रांसपोर्ट नंबर होता है पर सेकंड के अकॉर्डिंग। अगर पर सेकंड में अगर आपके जो पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये किसी भी इलेक्ट्रोड पर सेम नंबर ऑफ आयंस डिपॉजिट होते हैं जाके। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि KCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसी को ही प्रेफरेबली किया जाता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। नंबर 1 पहली चीज समझ लीजिए,
strong transport number से almost same, number 1, number 2 strong electrolyte, number 3 easily available, और थोड़ा इकोनॉमिक भी होता है, सस्ता भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ मार्केट जा खरीद लें, ऐसा नहीं मिलेगा, किसी केमिकल शॉप पर ही मिलेगा ये आपको, क्योंकि जब हम मंगाते हैं अपनी लैब के लिए तो एक एनालिटिकल होते हैं एनालिटिकल ग्रेड, जो एनालिसिस के काम के लिए आता है, तो ये लगभग 99% समथिंग प्योर होता है, तो इसी KCl का यूज करना है। आप NaCl भी यूज कर सकते हैं, लेकिन NaCl घर वाला नहीं, आपकी जो केमिकल शॉप वाला, क्यों है जो घर वाला जो NaCl उसमें आपका आयोडीन वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट ब्रिज। नाउ फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, नंबर 1, it complete the circuit and allows the flow of current, सर्किट को कंप्लीट करेगा और करंट फ्लो को अलाउ करेगा। दूसरा है it maintains the इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ही तरफ। आपने देखा होगा आपके साल्ट ब्रिज में, आगे और मैं दिखाऊंगा कि जो साल्ट ब्रिज जो दोनों एंड है वो डिफरेंट आपके हाफ सेल्स में डिप रहते हैं। इसका मतलब दोनों ही एंड पर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव को मेंटेन करेगा, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव को मेंटेन करेगा। यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिंपल सा यही है कि आपका एनोडिक एंड एंड कैथोडिक एंड। इसको और आगे और डिस्कस करेंगे। नाउ ये है आपका नेक्स्ट, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ये ईएमएफ आप कैपिटल में ले सकते हो, स्मॉल में भी ले सकते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। दिस इज आल्सो नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ई सेल। यस, सिंपल आप ई भी लिख सकते, ई कैपिटल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द डिफरेंस इन अ पोटेंशियल which cause the flow of current from the electrode having higher potential to the lower potential. अब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मतलब यहाँ बता दे रहा हूं मैं आपको। आपने ECS अगर माइंड में हो, मैं आगे दिखा दूंगा, ECS अभी आगे आएगी। ECS मीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर अब देखा होगा, अगर लिथियम से हम शुरू करें और गोल्ड की तरफ मूव करें, तो आपने देखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको क्या दिखागा, वो जो आपकी लिथियम वाली साइड है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर लिथियम पड़ता है, हाइड्रोजन नीचे आपका गोल्ड पड़ता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जिसका आपका जो पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हायर नहीं है। हायर का मतलब है जो उससे नीचे जो आपके, यानी कि आपकी जो सीरीज है वो लोअर टू हायर की तरफ मूव करती है, यानी लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका जो करंट फ्लो होगा किस साइड से होगा, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू द लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हायर टू लो। इसका मतलब है यानी नीचे वाली जो मेटल आएगी लिथियम के बाद, अगर आपको सीरीज याद हो तो लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये इसका एक ऑर्डर है। अगर मैं लिथियम और पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम जो मेटल यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और आपका जो लिथियम जो मेटल है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर होगा। तो करंट, आपका करंट जो पास होगा पोटेशियम टू लिथियम की साइड में होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। The difference in the potential which cause the flow of electrons, the difference in the potential, it is also difference potential, it is the difference in potential which cause the flow of electron from the electrode having lower potential to higher potential. इसका मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है और हायर पोटेंशियल जो डिफरेंस आया, दैट इज द इलेक्ट्रो आपका EMF ऑफ द सेल। इट इज एक्सप्रेस्ड, इसकी यूनिट होती है वोल्ट होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट। अब मिली वोल्ट भी यूज करते हैं, माइक्रो वोल्ट भी यूज करते हैं, जैसे आपकी मतलब जैसे आपकी यूनिट है उस तरीके से। मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक साइड में, वोल्ट वगैरह और मेगा वोल्ट ये यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल साइड में। यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लोअर यूनिट पर वर्क करती है, यानी मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो आपकी हायर वोल्टेज पर वर्क करती है। इट कैन बी मेजर्ड बाय द वोल्टामीटर। एक वोल्टामीटर आपका एक अपरेटस होता है जिससे कि हम उसकी एक इसमें कितना वोल्ट आपका रीड कर रहा है ये बता देंगे। आगे एक आएगा, मैं वहां क्लियर कर दूंगा इसको और ज्यादा, कैसे वोल्टामीटर क्या है और किस तरीके से इसको ये मेजर करता है।
Mathematically, it is represented by algebraic equations. Single electrode potential providing the proper sign according to actual reaction and on electrode. यानी कहने बेटा ये इसको मैं आगे और ढंग से क्लियर करूंगा, तो इतना समझ लीजिए ई सेल का मतलब है कंप्लीट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आएगा वो ई राइट माइनस ई लेफ्ट. यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, ई राइट का मतलब है जो राइट साइड में हाफ सेल है वो ये उसका पोटेंशियल, और ई लेफ्ट का मतलब है जो लेफ्ट साइड में हाफ सेल है उसका पोटेंशियल. तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ई मैप ऑफ द सेल कितना है. इसी तरीके से इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड और ई एनोड. आपने अगर थोड़ा याद हो बेटा तो ई राइट वाला जो सेल है उसको हम कैथोडिक एंड बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हाफ सेल है उसे बोलते हैं एनोडिक एंड बोलते हैं. तो सिंपल सी चीज वही है कि जो ई राइट है इसी ई कैथोड भी यूज कर लेते हैं. बेटा वेट करना थोड़ी देर के लिए. सो इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, जो ई राइट है वो आपका राइट हाफ सेल है, ई लेफ्ट आपका लेफ्ट हाफ सेल है, और इनको जोड़ देते हैं तो कंप्लीट सेल बन जाता है. तो सीधी सी बात है, जो राइट वाला है उसको बोलते हैं ई कैथोड यानी कैथोडिक एंड, जो लेफ्ट वाला उसको बोलते हैं एनोडिक एंड. तो एनोडिक एंड का मतलब है जो एनोडिक एंड पर जो पोटेंशियल है वो उसकी वो वैल्यू, और जो कैथोड एंड पर जो पोटेंशियल है वो वैल्यू. इसका मतलब यही है कि यानी कहने का मेरा मतलब है ई राइट में पॉजिटिव वैल्यू होती है, ई राइट में आपका नेगेटिव वैल्यू होती है. और ध्यान से अब ईसीएस को ध्यान से समझें. अब आप ईसीएस में जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले उनकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ईसीएस में जो हाइड्रोजन नीचे वाली वैल्यू उनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है. इसका मतलब यह है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो एनोड की तरह बिहेव करता है. ये है बेटा टाइप ऑफ सेल. सिंपल क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है टाइप ऑफ सेल. टाइप ऑफ सेल का मतलब है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय केमिकल रिएक्शन, बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, और होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू. इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल एंड कंसंट्रेशन सेल. फिर ध्यान समझना, गैल्वेनिक सेल एंड कंसंट्रेशन सेल. गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इसे डैनियल सेल भी बोलते हैं. और ये जो आप डैनियल सेल भी बोलते हैं और आपको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं. इसके तीन नाम हो गए, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल एंड डैनियल सेल. और इधर दूसरा ये आपका है इसकी साइड में कंसंट्रेशन सेल. ये द बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन. इसमें भी बेटा दो टाइप से होते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. फिलहाल जो नीचे वाला जो दे रखा है एग्जांपल में जो दिया है दैट इज द जिंक कंसंट्रेशन, दैट इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. ये डैनियल सेल ना ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे हम वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं. एग्जांपल है इसमें जो हम एग्जांपल यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही, दैट इज द जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल. आगे एग्जांपल आएगा. और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने पढ़ी होगी. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है जब भी हमें गैल्वेनाइजिंग या टिनिंग प्रोसेस किया जाएगा तो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिक प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं. यानी किसी भी बेस मेटल पर, किसी भी मेटल पर हमें कोटिंग करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू करते हैं. ये आगे डिटेल में आएगा. ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस मैंने डिफरेंट आपको ये सेल दिखाई दे रहा हूँ. ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है और राइट हैंड साइड में आपका कैथोड है. ये कैथोड है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एनोड. बात समझ, ध्यान से समझना. ये एनोड है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका कैथोड है राइट हैंड साइड में. और ये जो देख रहे हैं ये इन्वर्टेड यू ट्यूब, दिस इज द व्हाट सॉल्ट ब्रिज. अब मेन बैकबोन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री.
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये है अगर रिएक्शंस होगी तो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, यानी दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएंगी। तो केमिकल रिएक्शन where occurs transfer of electrons from one substance to another is called oxidation reduction reaction or redox reaction. इसको देख लीजिए, A प्लस बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस तरीके से ये देख लीजिए, बी नेगेटिव बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक जो इलेक्ट्रॉन एक दो आपका है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये देख इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, पॉजिटिव बन गया। ओके, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव बन गया, तो इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। दूसरा जो बी है, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व टू हाफ रिएक्शन, मींस एक में ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, और reduction involves the gain of electron by atom, ion or molecule. ये देख लीजिए, the reduction describe the sum of the two half cell reactions involving oxidation, loss of electrons, reduction, gain of electrons. सिंपल वही चीज है। अब यहां देख लीजिए, कॉपर आइंस पॉजिटिव आइंस है, ये जिंक सॉलिड है, ये आपका सॉल्यूशन में है। तो कॉपर यानी जब भी किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो वो आयनाइज होता है, बट आप बेटर जानते हैं। इसका मतलब यह है, मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने जिंक को ड्रॉप को डिप कर दिया, तो क्या बनेगा बेटा? जिंक सॉलिड हो जाएगा और आपका ये जो आपका जो जिंक आयन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिंक ने क्या किया? लॉस इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये कॉपर बन गया, यानी सॉलिड बन गया। और दूसरी केस यहाँ पर इसकी जो चार्ज है 2+2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसका चार्ज 0 है, यहाँ पर ये 2 है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात करें, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, इसका मतलब इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से समझना, इट मींस ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए +2 है, +2 के बाद 0 हो गया, इसका मतलब है डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन मींस रिडक्शन। दिस इज द सिंपल थिंग। अब देख लीजिए, ये आपका इनको दूसरे तरीके से शो कर दिया। यहाँ पर हमने जिंक सॉलिड Zn+2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर सॉलिड बन गया, तो रिडक्शन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। रिडक्शन का मतलब है सॉलिड का बनना, सॉलिड बनना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है डिसॉल्व होना या आयोनाइज होना। अब आते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल पर। बेटा जो भी इसमें लिखा हुआ है प्लीज इसको ध्यान पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। और अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो सिंपल एक काम करिए, एक छोटा सा बीकर बना लीजिए, उसमें एक रॉड डाल दीजिए, जो आप रॉड डालना चाहें, मेटालिक रॉड डाल दीजिए, और कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लीजिए, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना कुछ नहीं है, केवल एक बीकर बनाइए, बीकर में एक रॉड डालिए रेक्टेंगुलर शेप, और उसमें एक सॉल्यूशन बना दीजिए जिसमें लिख देना सॉल्ट सॉल्यूशन, और रॉड में लिख देना एम, मेटल की जगह पे एम लिख देना है, एम कॉमन। आई थिंक इतना काम कर लिया होगा। अब जरा मुझे सुनिए, when a metal is placed in its salt solution, पहली लाइन क्लियर, placed in salt solution, तो क्या होगा बेटा, जब किसी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, when a metal placed in a salt solution, अब होगा क्या है समझ लीजिए। नंबर एक, अब मेटेलिक आयंस कहाँ आएंगे? सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयंस की कमी है, ध्यान समझना मेरी बात को। और सॉलिड जो मेटल बना हुआ है, रॉड है, वो उसमें मेटल तो बहुत है, इसका मतलब है आपके जो वो आएंगे मेटल आयंस कहाँ आएंगे? मेटल रॉड से मेटल आपके सॉल्यूशन के अंदर।
अब ये जब मेटल आयन मेटल सॉल्यूशन अंदर आ जाएंगे तो अब होगा क्या, आयंस आएंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, तो होगा क्या, जितने मेटेलिक आयंस आपके वहां आएंगे सॉल्यूशन उतने ही इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह जाएंगे, रॉड के ऊपर। जब रॉड के ऊपर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसके, मेटल आयंस के, यानी मेटल आयन तो आ गए सॉलिड के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगी, पॉजिटिव। जब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, रॉड के ऊपर, तो वहां के उसके नेचर कैसे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड तो क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड क्रिएट होंगे वैसे ही एक दोनों में ही एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड इक्विलिब्रियम, समझना, इलेक्ट्रोड इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम सेट होगा तो बेटा दोनों ही एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहाँ पर, आपके सॉल्यूशन की साइड में और रॉड की साइड में एक पोटेंशियल, जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा वैसे ही एक पोटेंशियल